We start, that is our third chapter, current electricity, and obviously it's a very, very important chapter. So just give me. Today we'll start a new chapter. The name of the chapter is current electricity. The name of the chapter is current electricity. And see, in the first two chapter, what happened? The first two chapter is overall, the name is electrostatics. That means whatever we deal there, electro means charge and static means rest. So in the first two chapter, whatever we deal, how we store the charge particle, what do you mean by electric force, what do you mean by electric field, what do you mean by Gauss's theorem, everything is all about when the charge particle is at rest. But now we start the third chapter, that is the charge particle is in motion. So first of all, what is the definition of current electricity? Because the name of the chapter is current electricity. So what do you mean by current electricity? I is the current. That current means dq by dt, and your time tends to very small, means tends to 0. So that what we can write, dq by dt. So what is the definition of current? The definition of current is the rate of flow of charge particle is called current. Its SI unit is ampere and its dimension is capital A. Now, for conductor, if we think about a conductor, so what happened? And suppose we use a battery, then what happened? In battery, the current flow from plus polarity to minus polarity. That means in conductor, actually what happened? Electrons are flow in the opposite direction. That means electron flow from negative polarity to the positive polarity, and we know the current flow in the opposite direction. Why it is so? Because the convention is that convention is that current flow in the direction of positive charge flow or in the opposite direction of negative charge flow. So what is the convention? Convention is that current flow in the direction of positive charge or in the opposite direction of negative charge. So that means here, in generally, if we use a conductor, so what happened? In the conductor, the flow is electron, and electron is negative charge. So see, in the direction current flow, its opposite direction, electron flow. In the opposite direction, current flow. But you can flow current in other process also. Like we can write, this one is the one process. Second process is that if we use an electrolytic cell, in which if we have two plates like cathode and anode, and let the solution is ZnSO4, zinc sulfate. So what happened here? The current flow due to the movement of ions, ZnSO4 2 minus and Zn 2 plus. So that means what happened here in electrolytic cell, current flow due to flow of both the ions. Are you getting my point? For the positive charge as well as for the negative charge, they are called ions. Similarly, if we consider a semiconducting device, in semiconducting device, what happened? In semiconducting device, what happened? You have two type of combination, P and N, whatever it is. And in this, what happened? Two type of flow is there. One is called the hole, HOLE, which is positive charge. Another one is called the electron,
which is negative charge. So current flow due to the movement of both holes as well as electron. So it doesn't mean that current flow is only because of the flow of electron, but the chapter, in this chapter, that means in chapter 3, our main concentration is in this one. Our main concentration is in this one. So especially this one is your chapter 3. Means we are concentrate in conducting wire, not in the electrolytic cell, not in the semiconductor and all. So you understand, that's why in this chapter, whatever we study, that is about the electron flow, because in conductor you have ocean of free electron, and due to the movement of that free electron, electricity or current electricity flow. Hope you understand that part. At the second, and at the same time, so many types of current is there, but especially in your syllabus, means in class 12, you have two type of current. You have two type of current. One is called DC current and another one is called AC current. So we are concentrate in this chapter, means chapter 3, CHP, chapter 3, we are concentrate in DC current, not in AC current. For AC current, we have one more chapter, that after current electricity, we have magnetic field due to current, then we have magnetism, then we have electromagnetic induction, then we have that alternating current. So then we discuss more about this AC current, but here now again we are concentrate to that DC current. So that is our concentration. We concentrate our everything, especially in these two things. One is the flow of electron, free electron, and the second one is DC current. Regarding now the most important part is although we represent current by direction, but current is a scalar quantity. Like if we have a conducting wire like this, so we are representing current by the arrow, but current is not a vector quantity. Why? Because it does not follow triangle rule of vector addition. Why? Because it does not follow triangle rule of vector addition. I give you one example. What happened in vector addition? In vector addition, a square plus b square plus 2ab cos theta. That means that theta, by changing the theta, your resultant value change. Suppose here we take 30 degree and here we take 60 degree. That means let that current is 10 ampere, and now it is divided in two parts. One is 3 ampere, one is 7 ampere. Here it is 10 ampere. We can divide it into 3 ampere and 7 ampere. So whatever be the angle, the amount of current flow remains same. But if it is a vector quantity, by changing the angle, its resultant will affected. Like if I show you that wire, obviously from this wire are very less amount of current flow. So if we make it straight, if we make it that circular and some turn also, then also the amount of current flow doesn't matter. But if it is a vector quantity, then by due to that so many turns, the net turn is 0, so the current flow is 0. मतलब मैं जब भी इसको टर्न करता तो तुम्हारा ये जो अभी जो वीडियो चल रहा है वो ऑफ हो जाता है. बट एज इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो देखो मैंने कितना सारा टर्न मारा है, लेकिन मेरे को इसमें कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है. दैट मीन्स current is a vector, current is a scalar quantity, not vector quantity. My next important point is, this is a very, very important point, or next very, very important topic is drift velocity. What do you mean by drift velocity? Drift, D-R-I-F-T, drift velocity. Sometime in someone, they say also it's a drift speed. Drift speed.
स्पीड बोले वेलोसिटी बोले, इट डजंट मैटर, बट इसको वेलोसिटी बोलना ज्यादा एक्यूरेट है because you have a particular direction. Okay, so now what do you mean by drift velocity? The velocity of free electron movement, या movement of electron, या motion of electron is called drift velocity. Now see, basically what happened, suppose we choose a conducting wire. Everyone listen properly. Okay, we choose a conducting wire, and in conducting wire what happened, we have ocean of free electron, we have ocean of free electron. So we have bunch of free electrons, ocean of free electrons, and their motion is random. Their motions is random, means they can move in any direction, they can move in any direction. They can move in any direction. So overall motion is zero, means overall net direction is zero. As net direction is zero in a plane or conductor, if you have just a piece of wire, and if you want to calculate how much current is there, so the total amount of current is zero, means total current is zero, because overall flow is zero, no overall flow is there, means overall they are balance each other. Now what happened कि इसको मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करवाना है, तो इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करने के लिए हमें क्या करना है, इसको एक फील्ड जनरेट करना पड़ेगा. तो मैंने इस फील्ड जनरेट करने के लिए इसमें एक बैटरी लगाया. जब भी मैं इस पे एक बैटरी लगाऊंगा, चलो ओके, एक बैटरी लगाया V, एक बैटरी लगाया V. सो अब देखो क्या होगा, due to that plus polarity, this one is plus and this one is minus, so we are creating two poles, one is plus, one is minus. That means we are creating a electric field, we are creating a electric field. Now one thing we know, in presence of electric field, if we introduce a charged particle from electrostatics chapter, the force apply in the opposite direction of motion. So now due to that electric field, these electrons are now bound to move in a particular direction. Electrons are bound to move in a particular direction. They move in the opposite direction of electric field. They are moving in a particular direction. अब प्रॉब्लम ये है, ये जो मूवमेंट है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में हुआ, इट्स नॉट अ वैक्यूम, मतलब एकदम खाली रास्ता नहीं है कि तुम एकदम लाइन मेंटेन करके सीधा बाइक चला रहे हो या तुम चल रहे हो. ये कैसा है, ये इसका जो अंदर है, ये जो मेटल से बना हुआ है, मतलब इसके अंदर मेटल का क्रिस्टल लैटिक्स है. और क्रिस्टल लैटिक्स का है क्या मतलब है कि ये पूरा जाम रोड है, मतलब बहुत ज्यादा भीड़ है, दुर्गा पूजा का टाइम है, बहुत ज्यादा भीड़ है, तुम्हें कॉलेज पाड़ा से बाघाजतीन पार्क जाना है पूजा देखने के लिए. रास्ता एकदम खाली है तो तुम स्ट्रेट दौड़ के चले जाओगे, लेकिन रास्ता अगर पूरा भीड़ है, खचाखच भीड़ है, तो तुम कैसे जाओगे? जिधर तुम्हें जगह मिलेगा तुम उधर जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, ऐसे जाओगे, बट योर डेस्टिनेशन इज फिक्स. You move from college para to that Baghajatin park. So similarly what happened is, suppose these are the crystal lattice of the conductor, these are the crystal lattice of the conductor. और इस क्रिस्टल लैटिक्स के अंदर से इलेक्ट्रॉन को मूव करना है, इलेक्ट्रॉन को मूव करना है यहां से लेके यहां तक. तो वो कैसे जाएगा, उसको जिस तरह से जगह मिलेगा वो उस तरह से जाएगा. मानो इधर जगह मिला वो इधर जाएगा, फिर उसको इधर जगह मिला तो वो इधर जाएगा, फिर इसको इधर जगह मिला तो ये इधर जाएगा, फिर इधर गया, फिर इधर गया. मानो फिर आई जस्ट गिव यू जस्ट वन एग्जांपल
कि ऐसे करके वो जाएगा। अब देखो ये जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर है, ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होगा, मतलब भीड़ जितना ज्यादा होगा, तुम्हारा मोशन उतना ही कम हो जाएगा। मतलब ये जो क्रिस्टल का स्ट्रक्चर के ऊपर तुम्हारा रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा। जितना ज्यादा क्रिस्टल स्ट्रक्चर में ये लोगों के बीच में क्राउड ज्यादा होगा, तो क्या होगा कि इसका फ्लो घट जाएगा, मतलब इसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एंड बिकॉज ऑफ दैट zigzag path, the resistance is represented by the zigzag path. So we say resistance is represented by R. And why we show it's a zigzag? Because the path is not straight line, path is a zigzag line. That is the first thing. Second thing is that this motion is called Brownian motion of electron, और इससे इसको हम यहां से यहां ले आ सकते हैं in presence of electric field. अब देखो ये जो बैटरी है इसको EMF भी बोला जाता है, EMF। इसका नाम EMF क्यों है? इलेक्ट्रो मोटिव फोर्स। मतलब ये जो बैटरी है इसके कारण ये एक फील्ड जनरेट करेगा। इस फील्ड में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स लगेगा, जिस फोर्स के कारण इसमें मूवमेंट आएगा, इसीलिए इसका नाम है इलेक्ट्रो माने इलेक्ट्रॉन, मोटिव माने मोशन and force. So due to that battery, if you put that EMF in presence of electric field, that electric field realizes some force, and due to which the free electron or electron is moving. That's why it's called electromotive force. So now यहाँ पे देखो ये जो है मोशन तुम्हें पता चल गया, तुम्हारा पास इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा सो तुम इसको यहाँ से यहाँ ले आ सकते हो। दो तीन चीज इसमें इंपॉर्टेंट है। द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट, मैं इसको थोड़ा हटा के जगह लेता हूँ। द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि वी नो फोर्स that is E into electron charge into electric field. Force is E into electric field. E is the charge, and small e is the electron ka charge, and capital E is the electric field which you generate by the battery. So that is equals to mass into acceleration. So what do you mean by acceleration? Acceleration is E by M. Acceleration is E by M. Now velocity, we know V equals to U plus AT. So V is the drift speed, initial velocity is 0, acceleration is E by M, and time is called the tau. So drift velocity is E M into tau. यहाँ पे थोड़ा सा confusion है। NCERT में या according to your NCERT syllabus, ये लोग इस टाइम को एवरेज टाइम माना है और इसमें डायरेक्ट लिख दिया है। सो टाउ इज द एवरेज रिलैक्सेशन, अच्छा इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, इसको कहा जाता है रिलैक्सेशन टाइम, और एवरेज टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कॉलिजन, average time or relaxation time between two successive collision electron with the crystal lattice. तो देखो यहाँ पे एक धक्का खाया, यहाँ पे एक धक्का खाया, इसका बीच का जो टाइम है इस टाइम को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम। तो एचसी वर्मा में क्या किया, देखो जब ये धक्का खाया तब इसका वेलोसिटी वेरी लेस 0 है, और बिफोर धक्का खाया इसका वेलोसिटी मैक्सिमम है। तो ये दोनों वेलोसिटी का एवरेज वेलोसिटी जब भी हम करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन कांस्टेंट है, सो एवरेज वेलोसिटी जब हम करेंगे या ड्रिफ्ट वेलोसिटी जब हम लिख रहे हैं, दैट इज u प्लस v बाई 2, दैट इज यहाँ पे एक साइन था E टाउ बाई हाफ अकॉर्डिंग टू एचसी वर्मा। तो एचसी वर्मा का कहना भी सही है कि they use that time as a average time, they use that time as a relaxation time. लेकिन NCERT में क्या किया है, उसने इस टाइम को ही एवरेज मान लिया है। सो अगर ये टाइम को एवरेज मान लोगे तो ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी एक ही हो गया। यहाँ पे जो ये टाइम है दिस इज द रिलैक्सेशन टाइम, नॉट द एवरेज टाइम, और यहाँ पे ये एवरेज कॉलिजन टाइम लेके उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल दिया।
तो तुम्हें ये वाला नहीं करना है। मैंने दोनों इसलिए बताया बिकॉज जब तुम एच सी वर्मा देखोगे या कोई अदर बुक देखोगे तो तुम्हें हो सकता है कि सर हम लोगों का बुक में ये लिखा है, सर ने ये पढ़ाया है, लेकिन यहाँ पे तो हाफ लिखा है। तो ये हाफ आया है बिकॉज दे आर कंसिडर द इनिशियल वेलोसिटी 0 एंड फाइनल वेलोसिटी इज द मैक्सिमम वेलोसिटी। सो दोनों का एवरेज करके हाफ किया है। और हम लोग एनसीईआरटी में क्या किया है, इतना कंफ्यूजन में ना जाके उन्होंने टाइम को ही एवरेज ले लिया है। सो EEM into टाउ। तो तुम्हें या इवन यू कैन से कि जितना भी हमारा इंडिया में जितना भी एंट्रेंस एग्जाम और जो भी एग्जाम होता है, दे ऑल प्रेफर एनसीईआरटी बुक। सो एनसीईआरटी के हिसाब से जो लिखा हुआ है हमें उसको ही फॉलो करना है, और उस हिसाब से EEM into टाइम, एंड दिस टाइम इज कॉल्ड द एवरेज टाइम और रिलैक्सेशन टाइम। ओके, या एवरेज रिलैक्सेशन टाइम for the two successive collision with the electron with the crystal lattice of the material. So ये बहुत ही important formula है। इस important formula के ऊपर बेस करके they just give you direct question। कैसा direct question देगा, वो तुम्हें सीधा इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यू नो। इफ दे गिवन यू द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, you can easily find out the drift speed, or they given you the drift speed, they can ask you the relaxation time, or they can ask you the electric field। तो कुछ वो देगा। और okay, so now recording start। Next topic is relation between current and drift velocity। So for that again we consider a strip of conducting wire. Let the length of the wire is L, cross sectional area is A, and if we connected it with a battery, how current and drift velocities are related, that is we have to find out। So for that, the first important part is N is the number of free electron, N is the number of free electron per unit volume, मतलब कि एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा कि इतना पर मीटर क्यूब या पर सेंटीमीटर क्यूब, मतलब पर यूनिट वॉल्यूम। सो व्हेन यू गेट द N is the total number of electron per unit volume, so total number of electron, that is equals to N, that is the number of electron per unit volume, into volume, now volume is what? area into length। देखो मुझे इसको करंट के साथ जोड़ना है, तो सबसे पहले हमें ये जो लेंथ है L, so if Vd is the drift velocity, हमें क्या मालूम है? distance equals to velocity by time, velocity equals to distance by time, so distance equals to velocity into time। So if we put it here, so total number of electron, that is NaVdt। now total number of electron is this one, so total charge is how much? Total charge is total number of electron into charge of each electron। so what we have NeaVdt, that is the total charge, so what is the definition of current? Current is the total charge by total time, so current is the total charge by total time, that is NeaVdt by T, so T cancel, so what we have or what we left, I is equals to NeaVd। so we get the relation between drift velocity and the current
What is the relation? I equals to NEA VD. I equals to NEA VD. কোশ্চেনটা তোদেরকে পিডিএফ ফাইলে পাঠানো হয়েছে। A copper wire, okay, a copper wire has a resistance 10 ohm. So question is, a copper wire of resistance 10 ohm and area of cross section 1 millimeter square. A potential difference of 10 volt exists across the wire. Calculate the drift velocity of electron if the number of electron per cubic meter of the copper is, number of free electron per cubic meter of the copper is 8 into 10 to the power 28. See, all informations are given. You just have to find out the VD. So what we write I, that is voltage by resistance, that is NEA VD. So I, that is voltage, is how much? 10 volt. Resistance is how much? 10. That is number of free electron 8 into 10 to the power 28. Electron charge is 1.6 into 10 to the power minus 19. Cross sectional area millimeter square, 1 millimeter, that is 10 to the power minus 3 meter, and square, so you have to convert it 10 to the power minus 3 square, and then VD. So now you understand. So to find out VD, it's a very simple thing. 1 by 8 into 1.6 into 10 to the power 28 minus 19 minus 6. So how much you have? That is equals to 1 by এটা কত হবে রে? 8 আর 6, আচ্ছা লিখে দেন এইভাবে লিখ, you can calculate it. 120 19 20 24 25 120. तो इसको कैलकुलेट करके जितना आएगा that much meter per second, that much meter per second. अब देखो इसके साथ और कुछ important चीज है. The first important part is the drift velocity is very less amount. The drift velocity is very less amount. So the range of drift velocity is 10 to the power minus 3 to 10 to the power minus 4 meter per second. The range of drift velocity is very less. The range of drift velocity is very less. अब देखो इस टॉपिक के ऊपर बेसिस करके, इस ड्रिफ्ट वेलोसिटी के ऊपर बेसिस करके, इवन व्हेन यू गिव योर बोर्ड एग्जाम, तो तुम लोगों का एक बिफोर एग्जाम तुम लोगों को प्रैक्टिकल एग्जाम होगा, और उस प्रैक्टिकल एग्जाम में एक्सटर्नल आता है, और एक्सटर्नल आके तुम लोगों को कुछ छोटा बेसिक क्वेश्चंस पूछता है कि इसका क्या होगा, इसका क्या होगा. यू नो ऑल दिस थिंग्स, बट पहला बात है कि एग्जाम प्रेशर, दूसरा बात है कि अपना स्कूल का टीचर नहीं जिसको तुम डेली देखते हो, वो नहीं, बाहर से स्कूल का टीचर आ रहा है, और अगर वो थोड़ा खड़ूस हुआ तो उसको देख के और डर जाते हो, और इतना डर जाते हो कि सब कुछ भूल जाते हो, और उससे टीचर को ये लगता है कि स्टूडेंट को कुछ नहीं आता है. लेकिन तुम लोग डरना मत, क्योंकि डरना मना है. राम गोपाल वर्मा का एक मूवी आया था जिसमें डरना मना है, तो तुम्हें डरना नहीं है, डट के आंसर देना है. तो मैं ऐसा कुछ छोटा क्वेश्चन तुम लोगों को बता रहा हूं कि तुम लोग इसको डर के नहीं, डट के आंसर देना है. जैसे तुम लोगों को वो पहला क्वेश्चन करेगा कि अगर मानो मेरे पास एक ऐसे कंडक्टिंग वायर है और इसको मैंने एक बैटरी से कनेक्ट किया, तो ये प्लस है, ये माइनस है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, इलेक्ट्रॉन सप्लाई होते होते आएगा. तो मैं अगर इस वायर को यहाँ से काट देता हूँ और नीचे में एक बाल्टी रखता हूँ, तो बाल्टी में तो इलेक्ट्रॉन एकदम भर जाएगा. अरे यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा था, अब मैं वायर को काट दिया, नीचे एक बाल्टी रख दिया, तो बाल्टी में तो पूरा इलेक्ट्रॉन भर जाएगा ना. तो तुम लोग बोलोगे नो. क्यों? क्योंकि जहां तुमने yes, that I want to know. When you cut the wire, that means now ये तुम्हारा प्लस पोलरिटी, ये माइनस पोलरिटी,
और एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ और इलेक्ट्रॉन फ्लो व्हेन इट कंप्लीट द सर्किट। सो यहाँ पे सर्किट कट हो गया है, सो कोई बाल्टी फाल्टी नहीं भरेगा, ठीक है, ये सर्किट कट हो गया। এই এত ইজি কোশ্চেন দেবে না, সব ঘুরিয়ে পিছিয়ে হার্ড হার্ড দেয়। আরে তুই জানিস না। তারপর দেখ সেকেন্ড কোশ্চেন, the drift velocity is almost 10 to the power minus 3 meter per second to 10 to the power minus 4 meter per second। तो मानो मेरे घर का जो स्विच है वहां से जो फैन है, ये फैन का जो डिस्टेंस है, आई कैन शो यू द डिस्टेंस, इट इज ऑलमोस्ट, देखो ये है स्विच और ये ऊपर गया ऊपर गया ऊपर गया, फिर ये है फैन। तो ये देख रहे हो, तो ये जो है ये लगभग तुम्हारा 2 मीटर के आसपास है। तो अगर ये 2 मीटर के आसपास है तो माय क्वेश्चन इज दैट कि इफ द ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज दैट मच, तो 1 मीटर ट्रैवल करने में लगभग 1.5 से 2 घंटा लगता है। तो अगर ये 2 मीटर है तो 2 मीटर ट्रैवल करने से 3 से 4 घंटा लगना चाहिए। सो अगर 3 से 4 घंटा लगता है तो स्विच ऑन करने के 3 से 4 घंटा बाद फैन चलना चाहिए। सो जब भी तुम स्विच ऑन करते हो तुरंत फैन कैसे चलता है, ये है सेकंड क्वेश्चन। तो इसका भी देखो आंसर बहुत आसान है। तुम बोलोगे सर ये जो कंडक्टिंग वायर है इसमें जो हमें इफ वी कनेक्टेड विद ए बैटरी, ये जो ইলেকট্রনস তো এই টার্মিনাল এন্ডে মানে ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, यस, अरे सुनो तो, मानो इसका 2 मीटर है, ये पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में सही बात है 6 से 8 घंटा लगेगा। इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन को इस टर्मिनल से इस टर्मिनल में आने में 8 घंटा लगेगा, 7 से 8 घंटा, इफ इट इज 2 मीटर लॉन्ग। दैट इज वेरी ट्रू। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं है, क्वेश्चन है करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मैंने जहां स्विच को ऑन किया, यहाँ पे ओशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मैंने जहां स्विच को ऑन किया ये सब के सब मूव करना स्टार्ट कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन तो ये जो बाजू वाला है ये सप्लाई देना स्टार्ट कर दिया। तो एज जहां तुमने ऑन किया तो सप्लाई तो स्टार्ट हो गया, मतलब फ्लो तो स्टार्ट हो गया। तो जहां फ्लो स्टार्ट हो गया मतलब यू गेट करंट। दैट इज द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग यू कैन से कि सर करंट इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी तो ट्रांसफर, जहां थोड़ा सा आया ये इसको ये तो ट्रांसफर कर दिया। और ये इतना फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड में होता है कि ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन माने स्पीड ऑफ करंट इज 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मतलब ये लाइट के स्पीड में करंट मूव करता है। करंट, नॉट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लो ऑफ करंट। फ्लो ऑफ करंट इतना फास्ट मूव करता है बिकॉज इट्स द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मेरा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी, ये करंट डेंसिटी क्या है? करंट डेंसिटी है मानो मेरे पास एक ऐसे करके एक एरिया है जिसके अंदर से मुझे देखना है कितना सारा करंट पास कर रहा है। ऐसे करके करंट पास करेगा। लेकिन मैं अगर इस एरिया को बेंड कर दूं तो तुम देखोगे अगर मैं इसको बेंड कर देता हूं तो बहुत सारा करंट ठीक से पास नहीं कर पाएगा। कैसे? तुम बोलोगे सर ये आप क्या बोल रहे हैं कि ये पास क्यों नहीं कर पाएगा? फॉर एग्जाम्पल जैसे मानो करंट ये हो रहा है, मैं इसको ऐसे कर दिया तो इसमें से जाएगा ही नहीं करंट, 90 डिग्री हो गया। नहीं समझा? जैसे देखो ये है मेरा एरिया और ये करंट जा रहा है, तो ऐसे करके सबसे ज्यादा जाएगा। लेकिन मैं इसको ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो ये घट रहा है ना, नंबर घट रहा है, घटते घटते जब मैं ऐसा कर दूंगा तो एक भी नहीं जाएगा। सो दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे हम लोग एक एरिया वेक्टर लेते हैं, ds इज द एरिया वेक्टर एंड दिस एंगल इज थीटा। सो क्या होगा? ds cos थीटा। मतलब करंट के डायरेक्शन में मेरा एरिया जितना ज्यादा होगा मेरा करंट डेंसिटी उतना ज्यादा होगा। एंड करंट डेंसिटी इज डिफाइंड एज करंट पर यूनिट एरिया। S इज द एरिया। इसको मैं थोड़ा इस तरीके से भी लिख सकता हूं, DI by DS।
और अगर ये एंगल बनाता है थीटा, और अगर ये एंगल थीटा बनाता है तो इसको मैं di by ds cos theta भी लिख सकता हूँ. And yes, current density is a vector quantity. Current density is a vector quantity. So SI unit is ampere per meter square. And as it is a vector quantity, ध्यान से देखो कि di, that is integration of j dot ds. Q dot product of two vector. We all know area vector is a vector quantity from Gauss's theorem, chapter 1, electrostatics, from area vector. So area vector is a vector and current density is also vector. The dot product of two vector is a scalar, which is current. तो इसी को हम इस फॉर्मेट में भी लिख सकता है. इसको हम j ds cos थीटा, जो कि हम इसको डायरेक्ट लिख सकता है. सो इसको हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं. I इक्वल्स टू, क्योंकि इंटीग्रेशन ले लिया है तो j लेने का जरूरत नहीं है. इंटीग्रेशन लिया है तो di नहीं, I. सो वी कैन राइट दिस फॉर्मेट फॉर द करंट डेंसिटी. नाउ ये अगर करंट डेंसिटी हुआ, करंट डेंसिटी है, तो तुम्हें एक और रिलेशन आ सकता है यहां से. नाउ वी नो I is NEA VD, that relation we know. So current density is current per unit area, that is NE VD. So this is the relation between current and current density and drift velocity. This is the relation between current density and the next topic is mobility. That is also a very, very important questions there. What do you mean by mobility? तुम्हें समझ में आ ही रहा है. मोबिलिटी मतलब मोबिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्री इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द मोबिलिटी. इसको हम लोग क्या करते हैं, मोबिलिटी इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू एंड इट इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट electric field. It is defined as drift velocity per unit electric field. We also know that drift velocity is EEM into tau. So if we put it here, EEM tau by E, so EE cancel, that is E tau by M is the mobility of the electron. Or you can say in that way, the mobility is defined as the ratio of drift velocity per unit electric field. The mobility is the defined as the drift velocity per unit electric field. It's depend on drift velocity and electric field, or it's depend on electron relaxation time and mass. So if the relaxation time increase, then the mobility increase. If the relaxation time decrease, then the mobility is decrease. तुम बोलोगे सर कैसे? देखो, मानो एक कंडक्टर है, उसके अंदर में इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है. अब तुमने टेम्परेचर बढ़ा दिया. सो इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, अब क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन था इसका जो स्पीड था बढ़ गया. तो स्पीड बढ़ गया मतलब कि ये जल्दी जाएगा. तो ये जल्दी जाएगा मतलब क्या, जल्दी धक्का खाएगा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा. सो टाइम बढ़ा, टेम्परेचर बढ़ा तो रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा, रिलैक्सेशन टाइम बढ़ा तो मोबिलिटी बढ़ा. मतलब हम लोग बोल सकता है टेम्परेचर is directly proportional to relaxation time, directly proportional to mobility. इस तरह का छोटा छोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आता है. And now my next very, very important topic is derivation of Ohm's law. My next very, very important topic is derivation of Ohm's law. Derivation of Ohm's law. Of Ohm's law. Ohm's law. ये very, very important है. Very, very important है for your board exam. Derivation of Ohm's law. तो देखो इसमें क्या है. Suppose we have a conducting wire which we connected with a battery of voltage V, and let this one is the plus polarity and this one is the minus polarity. So it generates an electric field and L is the length. So we know very well that voltage that is equals to electric field into length. So we can write it equation number 1. We can write it equation number 1.
we also know, we know Vd is m into tau. So E is what? E is m Vd by E tau. So if we put this value in equation 1, V equals to m Vd E tau into L, let it be equation number 3. We also know that I equals to NEA VD. So VD equals to I by NEA. Let it be equation 4. And putting the value of equation 4 in equation 3, like we put equation 2 in equation 1. Putting the value of equation 4 in equation 3, V equals to MLE tau. And in place of VD, we write I by NEA. So overall, what we have, that is very, very important. मैं थोड़ा बड़ा बड़ा करके लिख रहा हूँ. MLNE square A tau into I is the V. So this derivation is very, very important. क्योंकि इसको एक बार ध्यान से देख लो, मैंने ये कॉपी में तुम लोगों को लिखा ही था, MLN स्क्वायर A tau into I. अब मैं शुरू वाला सब हटा रहा हूं टू गेट मोर स्पेस. यहां पे देखो, एक चीज देखने की बात है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेंथ ऑफ द वायर, N is the number of free electron per unit length, E is the charge of the electron, A is the cross sectional area and tau is the relaxation type. अब देखो, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को तुम ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हो क्योंकि इट्स अ वेरी लेस स्पीड. इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी फिक्स है. ओके, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, इट्स डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल. अगर तुमने कॉपर वायर लिया तो वो कॉपर वायर ही रहेगा, सिल्वर वायर लिया तो सिल्वर ही रहेगा, आयरन लिया तो आयरन रहेगा, एल्युमिनियम लिया तो एल्युमिनियम ही रहेगा. सो ये भी फिक्स है. तो इसमें क्या है, ताऊ को तुम चेंज कर सकते हो बाय चेंजिंग द टेम्परेचर. बिकॉज इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर, उसका काइनेटिक स्पीड बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, तो स्पीड बढ़ जाएगा या वेलोसिटी बढ़ जाएगा, तो वो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा. सो जल्दी जल्दी कोलाइड करेगा मतलब टेम्परेचर डिपेंड ऑन रिलैक्सेशन टाइम. दैट इज द फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग इज दैट कि इफ यू चेंज द लेंथ, then cross section area change. If the cross section area change, then the length change. तो इसको मद्देनजर रखते हुए, मतलब इसको सामने रखते हुए, ओम्स ने दो बात बोला at constant temperature and at constant mechanical condition. ये जो मैकेनिकल कंडीशन है, इस मैकेनिकल कंडीशन क्यों बोला? क्योंकि मैकेनिकल कंडीशन में देखो, मैकेनिकल कंडीशन मतलब लेंथ को चेंज करेंगे तो एरिया चेंज होगा. कांस्टेंट मतलब ना लेंथ चेंज करना है, ना क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज करना है, कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेस नहीं देना है, जैसा है एज इट इज. सो एट कांस्टेंट मैकेनिकल कंडीशन क्या होगा, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट हो गया. अरे ये so at constant temperature and at constant mechanical condition, what happened कि m, l, n, e, a, tau, these all are constant. So as these all are constant, so we can say V is directly proportional to I. So V is equals to Ri. V equals to Ri. So इसी को बोला जाता है Ohm's law, where R is the resistance. If we compare with this, what is the value of R? M L N E square A tau. अरे ये इतना मैसेज.
So at constant temperature and at constant mechanical condition, that temperature constant হলে tau constant হয়ে যাবে, আর মেকানিক্যাল কন্ডিশন কনস্ট্যান্ট হলে লেন্থ আর এরিয়া দুটোই কনস্ট্যান্ট হয়ে যাবে। এবার এই দুটো কনস্ট্যান্ট, বাকিগুলো তো ইটসেলফ কনস্ট্যান্ট, তাহলে এম কনস্ট্যান্ট হলো, এল কনস্ট্যান্ট হলো, এন কনস্ট্যান্ট হলো, ই কনস্ট্যান্ট হলো, এ কনস্ট্যান্ট হলো, টাউ কনস্ট্যান্ট থাকলো, তাহলে থাকলো কি কারেন্ট। সো ভি ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু আই, ভি ইকুয়ালস টু আর আই, where r is a what, where r is v by I is called constant, মানে ওভারঅল কনস্ট্যান্ট, এই পুরো কনস্ট্যান্ট একে বলা হয় ওম। এর এসআই ইউনিট হচ্ছে ওম, মানে এই কনস্ট্যান্ট কে বলা হয় রেজিস্ট্যান্স, রেজিস্ট্যান্স যার এসআই ইউনিট হচ্ছে ওম। Is it clear? Is it clear for everyone? Where R is a constant is called resistance, is SI unit is ohm. এবার দেখ अब এর উপরে मतलब on the basis of that so many good questions examiner can arise. So let's start with this, which type of questions they can arise. First, so graphical questions they can give you. This one is voltage, this one is current. Resistance is voltage by current. So what we can say ki that is equals to tan theta or slope. So obviously if this one is theta, so this one is R, that is voltage by resistance, or you can say change in voltage by change in resistance. They given you some value of change of current, they given you some value of change of voltage. The ratio is called the resistance. This is the first thing. Now with this, examiner can ask you so many type of question, like they can ask you this one is A, this one is B, this angle is theta A, this angle is theta B. Okay, so whose temperature is higher? So very simple, देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे कि clearly from figure theta B greater than theta A, tan theta B जो होता है वो tan theta A से बड़ा होता है, तो R equals to V by I is the tan theta, that means resistance of B greater than resistance of A. और यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर हम देखें, so देखो temperature is directly proportional to, temperature बढ़ाओगे, so sorry temperature अगर बढ़ाओगे, I'm sorry शायद थोड़ा सा गलती हुआ था, if you increase the temperature, वो लोग जल्दी कोलाइड करेगा, तो वो लोग जल्दी कोलाइड करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, मतलब जल्दी कोलाइड करेगा, जल्दी का मतलब कम टाइम लगना। सो टेम्परेचर मैंने वहां पे शायद डायरेक्टली लिखा था, उसको थोड़ा करेक्ट कर लेना, मैंने वो मोबिलिटी वाला में वो क्या बोला था, टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा बोला था, वो गलती हुआ है। टेम्परेचर इज डायरेक्टली, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम घटेगा, रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, मतलब तुम्हें टेम्परेचर बढ़ाना है तो रेजिस्टेंस बढ़ाना है तो टेम्परेचर बढ़ाओ, या टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो देखो जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, सो लेट इट बी टीबी, लेट इट बी टीए, तो किसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, जिसका ज्यादा रेजिस्टेंस है। कभी कभी ऐसा बोलता है इसमें से कौन सा था, दो रेजिस्टेंस दिया है तो जिसका सीरीज में ऐड होता है पैरेलल में क्या होता है, 1/, होता है, तो जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा वो सीरीज होगा, जो कम रेजिस्टेंस होगा वो पैरेलल होगा। इस तरह का छोटा छोटा क्वेश्चंस पूछ सकता है। अच्छा, इसके बाद अगर हमें So mobility to temperature inversely or proportional? হ্যাঁ আমি ভুল করে ওটা টেম্পারেচারের সঙ্গে ইয়ে করে দিয়েছি, ঠিক আছে, মানে তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে মুখে বলেছি যে জলদি, কিন্তু বলতে গিয়ে তাড়াতাড়ি বলে দিয়েছি। আচ্ছা, इसके बाद देखो यहाँ से एक दो और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज सबसे सामने आएगा। रेजिस्टेंस वी नो फ्रॉम क्लास 10 दैट रो L by A, and now we know that resistance is ML NE square A into tau। तो यहां से अगर मैं
दोनों को कंपेयर करूं तो देखो लेंथ जैसा है ऐसा है, एरिया जैसा है वैसा ही है, तो मेरा रो जो है, रो का वैल्यू कितना आएगा, ये होगा रो। तो रो का वैल्यू कितना आया, रो आ गया एम एन ई स्क्वायर टाउ इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी तो तुम्हें बोलेगा रेजिस्टिविटी डिपेंड ऑन विच फैक्टर। देखो मास तो इलेक्ट्रॉन सबका सेम ही है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी सबका सेम है। एक हो गया रिलैक्सेशन टाइम मतलब टेम्परेचर, और दूसरा हो गया नेचर ऑफ द मटेरियल, क्योंकि तुम सिल्वर लोगे, आयरन लोगे, कॉपर लोगे, जिंक लोगे, सबका इन अलग अलग होगा। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड्स ऑन two factor. Number one, nature of the material. Number two, temperature. देखो टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम घटेगा तो रेजिस्टिविटी बढ़ेगा। सो क्या लिखेंगे, रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। एंड इसमें तुम एक और बात लिख सकते हो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस के साथ रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बेसिकली टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम घटता है, मतलब रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है, मतलब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। अच्छा, इसके साथ साथ तुम और भी बहुत सारा चीज निकाल सकते हो, जैसे एसआई यूनिट के लिए हम लोग लिखेंगे रो इक्वल्स टू आर ए बाई एल, सो ओम मीटर स्क्वायर बाई मीटर, दैट इज ओम मीटर। ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी, ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बाद देखो, हाँ इसके बाद देखो ये हो गया एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये सब, दिस ऑल आर 1 मार्क्स क्वेश्चन, सबसे ज्यादा यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन देता है। तुम्हें बोलेगा ड्रॉ रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर मेटल जहां हुआ, सो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब ऑलमोस्ट ऐसे, रेजिस्टिविटी वर्सेस टेम्परेचर फॉर मेटल, बिकॉज मेटल में क्या होता है, इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी इंक्रीज। लेकिन यही मानो रेजिस्टिविटी एंड टेम्परेचर फॉर सेमीकंडक्टर ठीक उल्टा हो जाता है। सेमीकंडक्टर में क्या होता है, यहाँ पे वी कैन राइट रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, और यहाँ पे क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे सो रेजिस्टिविटी घट जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी बढ़ जाएगा। मतलब सेमीकंडक्टर इसका ऑपोजिट नेचर है कि इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर रेजिस्टिविटी घट जाएगा। इसीलिए क्या करता है कि कंप्यूटर को शुरू में जब कंप्यूटर आया था, इट्स बेसिकली मेड ऑफ सेमीकंडक्टर, और उसमें क्या होता था, वो काफी ज्यादा गर्म हो जाता था। तो देखो गर्म अगर होगा टेम्परेचर बढ़ेगा मतलब क्या, रेजिस्टिविटी घट जाएगा। सो रेजिस्टिविटी घट जाएगा मतलब क्या, उसका करंट ज्यादा फ्लो होने लगेगा, शॉर्ट सर्किट होके वो इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाता था। और शुरू में उतना अच्छा कूलर नहीं था, अभी कंप्यूटर में काफी अच्छा कूलिंग प्रोसेस आ गया है। तो कूलिंग प्रोसेस आने के लिए अभी तुम रूम टेम्परेचर में भी काम कर सकते हो, लेकिन पहले इसीलिए कंप्यूटर को एसी में रखना पड़ता था ताकि रूम टेम्परेचर में या 24-25 डिग्री वो मेंटेन रखे। ये हो गया सेमीकंडक्टर। और एक देता है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको बोला जाता है सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर में देखो क्या होगा कि দেখা যাচ্ছে सुपर कंडक्टर में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको बोला जाता है कि क्रिटिकल टेम्परेचर, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जिसको बोला जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर, इस क्रिटिकल टेम्परेचर
को हम घटाते घटाते जब क्रिटिकल टेम्परेचर में आएंगे, इफ द टेम्परेचर इज लेस देन दैट, रेजिस्टिविटी फटाक से फॉल कर जाता है। तो फॉल कर जाता है मतलब इट विल बी कंडक्टर बिकम सुपर कंडक्टर, मतलब कोई उसमें रोक टोक नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। तो ये हो गया सुपर कंडक्टर और ये हो गया कंडक्टर। एग्जाम्पल? कोई भी, जैसे आयरन ले लो, आयरन को तुम अगर सुपर कंडक्टर में कन्वर्ट करना है तो इफ योर टेम्परेचर इज ऑलमोस्ट 4 to 5 केल्विन, 4 से 5 केल्विन के नीचे रखोगे तो ये सुपर कंडक्टर हो जाएगा। बट टू अचीव 4 to 5 केल्विन इज नॉट अ जोक। सो इसलिए सुपर कंडक्टर का वैसे करके हम लोग का नॉर्मलाइज फॉर्म में बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। सो ऐसे सुपर कंडक्टर का यूज किया है, तुम गूगल में देख सकते हो कि व्हाट इज द यूज ऑफ सुपर कंडक्टर। सो ये तीन ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये तीन ग्राफ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं रेजिस्टेंस का एक और चीज बताना चाहता हूं। ये कभी कभी छोटा छोटा लगता है कि अभी हमें पता है कि रेजिस्टेंस is directly proportional to resistivity, directly proportional to temperature and inversely proportional to relaxation time। तो इसीलिए रेजिस्टेंस के साथ ये टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। याद करके देखो, क्लास 11th में हम लोग जब हीट पढ़ा था तो जो भी लीनियरली डिपेंडेंट था, जैसे हम लोगों ने बोला था कि रेजिस्टेंस थर्मोमीटर, याद है, प्लैटिनम थर्मोमीटर, प्रेशर थर्मोमीटर, रेजिस्टेंस थर्मोमीटर। सो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, सो यू कैन मेजर द टेम्परेचर। सो वहां पे लीनियर डिपेंडेंट जो भी होता है उसके लिए R इक्वल्स टू R0 1 प्लस अल्फा डेल थीटा लिखा था, तो वो यहाँ से आया था। और यहाँ पे मतलब नाउ यू नो कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। वहां पे हमने बोला था कि रेजिस्टेंस टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन नाउ यू नो व्हाई, क्यों होता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से स्पीड बढ़ जाता है, स्पीड बढ़ने से रिलैक्सेशन टाइम घट जाता है, रिलैक्सेशन टाइम घटने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाता है एंड रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। ये R0 इज द इनिशियल टेम्परेचर, डेल थीटा इज द चेंज इन टेम्परेचर, alpha is called the coefficient of thermal expansion. This one is called the coefficient of thermal expansion. अच्छा, इसके साथ साथ एक और छोटा सा एक टॉपिक है, इसको बता देता हूं। वो ये है कि हमें पता है R इक्वल्स टू रो L बाई A। कुछ छोटा छोटा बात भी बता देता है कि SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम, सो SI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस is ohm, represented by this sign। अब देखो, रेजिस्टेंस का उल्टा होता है कंडक्टेंस, 1 by R is called the conductance। समझ में आ ही रहा है। अगर कोई रोक रहा है, जो कम रोक रहा है, उसको कंडक्टेंस मतलब फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल, रेजिस्टिविटी मतलब लेस फ्लो ऑफ द चार्ज पार्टिकल। सो रेजिस्टेंस का उल्टा है कंडक्टेंस, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम इनवर्स। सिमिलरली रो क्या है, रेजिस्टिविटी, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर। और यहाँ पे एक होता है सिग्मा, इसको इनवर्स ऑफ द रेजिस्टिविटी, इसको बोला जाता है कंडक्टिविटी। समझ में आ रहा है? सेम ही बात है। रेजिस्टिविटी जितना कम होगा कंडक्टिविटी उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टिविटी जितना ज्यादा होगा कंडक्टिविटी उतना कम होगा। तो इनवर्स प्रोपोर्शनल टू दिस, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम मीटर इनवर्स। सो कोई इस ओम इनवर्स को MHO बोलता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, तुम लोग ओम मीटर ही बोलना, ओम इनवर्स ही बोलना। सो दिस 4 आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वेयर R इज द लेंथ, A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया। इसके साथ मैं एक छोटा सा क्वेश्चन तुम लोगों को दे रहा हूं, शायद तुम लोगों को अच्छा लगेगा। कि मेरे पास एक वायर है,
ऐसे करके मानो ये है 30 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर और ये है 20 सेंटीमीटर। अब देखो अगर इधर से करंट फ्लो करेगा तो मानो रेजिस्टेंस R1 है। अगर इस ऐसे करंट फ्लो करेगा, क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूं, अगर ऐसे करंट फ्लो करेगा तो लेंथ हो जाएगा ये, सो मेरा रेजिस्टेंस है R2। और अगर ऐसे मतलब if this is the length, this is the height, so this one is the breadth, so this one is the breadth। अगर ऐसे करंट फ्लो करेगा so resistance is R3, so what is the ratio of R1 is to R2 is to R3? It's a very very good question। तो देखो करना क्या है, सेम मटेरियल से बना है तो रो इज सेम। पहला वाला कौन सा, ये लेंथ कितना है 30 सेंटीमीटर, फॉर्मूला क्या था रो एल बाई ए। तो जब ये लेंथ है बाकी जो दो बच गया कितना 10 and 20, 10 and 20 आर द क्रॉस सेक्शनल एरिया। दूसरा वाला में क्या है रो इनटू लेंथ, देखो लेंथ क्या है 20, तो 20 अगर चला गया बचा कौन 10 इंटू 30, ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं है। तीसरा वाला में देखो लेंथ क्या है, ये वाला मतलब ये वाला लेंथ है, तो लेंथ हो गया 10 सेंटीमीटर, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया क्या हो गया 20 इंटू 30। अब इसको क्या करना है, मुझे रेशियो खेलना है। सो ये हो जाएगा 3/20 is to 2/30 is to 1/60। तो इसको 60 से गुना करो, 60 से गुना करोगे तो 3 मिलेगा, 3 तिया 9, इसमें करोगे तो 4, इसको करोगे तो 1। So the ratio is 9:4:1। So up to this is that is my today's lecture।